आप को स्ट्रांग रखते हो तो आपकी फैमिली भी आपके साथ स्ट्रांग रहती है। अगर आप जरूर। अपने आप को वीक दिखाओगे तो आपकी फैमिली भी वीक यस। महसूस करेगी, राइट? करेक्ट। तो जो आपने जो किया है वो आई थिंक बहुत कम लोग कर पाते हैं, विच इज हैट्स ऑफ टू यू फॉर व्हाट यू हैव डन। कोच गौरव खन्ना सर बोलते हैं कि प्रॉब्लम मत बताइए, उसका सॉल्यूशन ढूंढिए। तो मुझे जहाँ तक लगता है जिस दिन आप प्रॉब्लम को सुनाने के बदले उसका सॉल्यूशन, उसका हल ढूंढेंगे, तो उसी दिन आप एक स्टेप आगे बढ़ चुके होंगे। नाउ एक चीज बहुत क्लियर है, इफ यू गिव एक्सक्यूजेस टू योरसेल्फ, डू यू थिंक दैट योर लाइफ विल बिकम व्हाट यू हैव ड्रीम्ड ऑफ? आई एम श्योर the answer will be no. Hello and welcome viewers for my show Bounce Back Stories with Shailesh. आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। I am Shailesh Kumar, transformation coach and founder of Midlife Thrivers Club, and I'm on a mission to transform 100,000 people to bounce back during their midlife transition using scientific and research-based skill building tools and help them thrive in their life. बहुत से लोग जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो एम्बिशियस हैं और आगे बढ़ नहीं पाते हैं because they are facing some inner blocks. Either they have gone through some tough situations in life, negative beliefs लेके जी रहे हैं, जिसकी वजह से अपने लाइफ में क्लैरिटी बिल्ड नहीं कर पाते और आगे अपना रास्ता डिसाइड नहीं कर पाते हैं। I work with those people to help them rediscover themselves, rewire their mind, and transform their mindset and help them overcome their inner challenges through a time-tested coaching system. This is how they achieve success in their career, in relationships, by being their authentic selves and be happy from within. I welcome you for my first episode of the show Bounce Back Stories with Shailesh. इस शो का सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव है, to inspire thousands of people by bringing some of the amazing stories of people who have bounced back in their life with sheer determination and courage shown to just prove a point that challenges come in life and how we respond, that matters a lot. अगर आप ये शो YouTube पर देख रहे हैं, Instagram, Facebook पे देख रहे हैं, तो please do click on the subscribe button and do like and subscribe to the page and view many such stories coming up in future. Okay? So let's start, and I want to start with one very important message actually. अगर इरादे मजबूत हों और हौसले बुलंद, कुछ कर गुजरने का जुनून हो और ईमानदारी से मेहनत की जाए तो कुछ भी असंभव नहीं। इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण आज हमारे बीच में है। I would like to welcome a person today in this show, the very first show Bounce Back with Shailesh, who is truly inspiring, and he shows nothing is impossible, and this shows actually nothing is impossible if we believe in ourselves. Meet my guest, Mr. Prem, who was born in Nepal. He worked in the Indian Army, had a road accident in 2009, now live in a paraplegic rehabilitation center in Pune. He started playing badminton in 2014 and now playing for India, and have participated in many international tournaments like World Championship, Asian Games, and won so far 2 gold, 3 silver, and 3 bronze medals internationally. And recently he won a silver medal in men's doubles here at Dubai Para Badminton International 2021. Please put your hands together for one and only Mr. Prem, who has been an awesome personality, and I can't wait to get started with him. So Mr. Prem, really warm welcome to you for my show Bounce Back Stories with Shailesh. Very warm welcome to you. Thank you so much for coming in. And really, नमस्ते। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा मिस्टर प्रेम, आपसे हमारी ऑडियंस है जो बहुत कुछ सुनना चाहेगी। आई नो आपने बहुत चीजें अचीव करी है अपने लाइफ में, बहुत चीजें आपने अच्छे मुकाम अचीव करे हैं, आपकी स्टोरी रही है लाइफ में अपनी अलग। और मैं चाहता हूँ कि आप बताएं दर्शकों को आपका व्हाट वाज द बैकग्राउंड, क्या है आपका, और आपने कैसे आप इस मुकाम तक पहुंचे हैं। जय हिंद सभी को। मेरा जन्म नेपाल में हुआ था और 2005 में मैं इंडियन आर्मी में आया था।
और 2009 में मेरा रोड एक्सीडेंट हुआ था ड्यूटी के दौरान, और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुआ। और 2009 के दिसंबर से मैंने स्पोर्ट में पता चला, तो मैंने ट्राई करता रहा। मैं फर्स्ट एथलेटिक्स किया, फिर मैराथन ट्राई किया, स्विमिंग किया, एंड बास्केटबॉल ट्राई की। फाइनली मैं 2014 में मैं बैडमिंटन पार्टिसिपेट किया, और वहाँ पे मैंने नेशनल पार्टिसिपेट किया 2014 में ही। मैं 3 महीना प्रैक्टिस करने के बाद 2014 में नेशनल पार्टिसिपेट किया, फर्स्ट नेशनल मेरा था। उसमें मैंने सिंगल में ब्रॉन्ज एंड डबल्स में गोल्ड जीता। तो मैंने सब कुछ छोड़ा, फिर बैडमिंटन, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स सबको सेकेंड पोजीशन में रख के बैडमिंटन को फर्स्ट दिया, और वहाँ से मुड़ के नहीं देखा, और 1 by 1 स्टेप में आगे बढ़ता गया और यहाँ पे पहुंचा था। बहुत बढ़िया मिस्टर प्रेम, आपने कहा आप आर्मी में थे और आपका एक्सीडेंट हो गया था और आपने बैडमिंटन शुरू किया। कई लोग मैं देखता हूँ आजकल जो कई टफ सिचुएशन से गुजर रहे हैं, बहुत टफ सिचुएशन गुजरते हैं, उसके बाद हार मान लेते हैं, हताश हो जाते हैं। आपने अपने आप से क्या बोला जो आप आज इंडिया के लिए खेल रहे हैं, एंड यू आर रिप्रेजेंटिंग नेशनल डिफरेंट चैंपियनशिप अक्रॉस द ग्लोब, आप सिंगापुर, थाईलैंड, एवरीवेयर यू हैव बीन। आप आज आपने अपने आप से क्या बोला उस समय जो जिसकी वजह से आज आप यहाँ पे खेल रहे हैं? जी, सबसे पहले तो जब एक्सीडेंट हुआ तो शुरू में स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होने के बाद कि सबको ठीक हो गया, चलने का ही जो पहले पुराना पोजीशन है वही आने का सोच रखा था। लेकिन बाद में मेरे को ठीक 4 महीने के बाद पता चला कि लाइफ टाइम अभी तुम चल नहीं सकते। तो थोड़ा सा दुख हुआ मुझे, ज्यादा नहीं, लेकिन 2 वीक ही मैं थोड़ा सा सोचने लगा था, ओनली 2 वीक सोचा। लेकिन उसके बाद जो आर्मी का जज्बा तो था ही और मेरे परिवार का सपोर्ट था जो मुझे हेल्प किया, वो उनका ही सपोर्ट की वजह से मेरा हिम्मत बढ़ा। और मैं पैराफिजिक रिहैबिलिटेशन सेंटर पुणे में जो है उनसे जुड़ा, तो वहाँ गया के देखा तो पुराने लोग जो 30 साल से 35 साल से 40 साल से वो लोग व्हीलचेयर में जी रहे थे। तो फिर वहाँ पे उन लोगों को देख के मैंने ऐसे लोग देखे कि जो हाथ भी काम नहीं करते, तो मैंने वहाँ से उनको देख के मुझे पॉजिटिव ये पॉइंट आया कि थिंकिंग आया कि नहीं, मेरा तो हाथ तो काम करता है अभी तो, इसका मतलब मैं अभी भी कुछ कर सकता हूँ। भगवान ने मुझे अभी कुछ करने के लायक छोड़ा है, मैं बोला कुछ अभी करने दिखाने लायक छोड़ा है, मैं बोला कुछ। वहां से शुरू किया गया मैंने, फिर वहां से शुरू किया। फिर आगे देखा कई प्लेयर जो हमारे सेंटर में, कई प्लेयर ओलंपिक प्लेयर भी हैं और कुछ बास्केटबॉल प्लेयर हैं। तो सबसे पहले मैं बास्केटबॉल से शुरू किया था। बास्केटबॉल में हमारा टीम अभी तक 6 टाइम नेशनल चैंपियन भी है, और 2017 में मैं टीम कैप्टन भी था बास्केटबॉल के टीम इंडिया से, और हमारे टीम से इंडोनेशिया से ब्रॉन्ज मेडल और क्या बोलते हैं, और एशियन ओशियाना चैंपियनशिप में भी पार्टिसिपेट किया था जी। और उसके बाद मैं 2014 में मैंने बैडमिंटन शुरू किया था। जैसे मैंने पहले बताया कि मैंने फर्स्ट नेशनल में ब्रॉन्ज और डबल्स में गोल्ड जीता था। उसके बाद मुझे पूरे टीम पीआरसी हर तरह से मेरे जहाँ मुझे सपोर्ट करने वाले के लिस्ट काउंट करो तो मेरे से ख्याल से मैं कर नहीं पाऊंगा इतने लोग हैं जो मुझे सपोर्ट करने वाले क्योंकि मेरे लिए जो चल रहे हैं, जो सिखा रहे हैं, मुझे सिखाते हैं, वो भी मेरे लिए कोच है। और जो हाथ पैर काम नहीं करता, बेड में रहते हैं पीआरसी में, पैराफिजिक क्वार्टर फिजिक है, वो भी मेरे लिए कोच है। क्योंकि मैं हर किसी से सीखता हूँ और एक ना एक पॉइंट से उनसे ज्ञान लेता हूँ और आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू प्रेम। मैं रियली हमारे दर्शक इसमें जो देख रहे हैं, ये आपको एक बहुत बड़ा, आपने एक बहुत अच्छी बात बोली है, पता है बीच में
जो आपने ये बोला कि मैं देख रहा हूँ कि मेरे जब मैं कैंप में गया उसमें, और आपने कई लोगों को देखा जो किसी के हाथ नहीं है, किसी के नो दे आर नॉट एबल टू इवन ईट देमसेल्व्स, खुद खा नहीं पाते हैं, और आपने यस उनको सर। देखा और उनसे उनसे ये देखा कि आपके पास यू स्टिल हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू, स्टिल यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स फॉर योरसेल्फ। आपने फोकस वहां किया जहां आपने अपने स्ट्रेंथ को देखा, और मैं अभी भी, ऐसा नहीं है कि मैं लॉस्ट हो गया हूँ लाइफ में, आई कैन स्टिल मेक जी अ बिग डिफरेंस। तो जी। मैं आपके इस जज्बे को सलाम करता हूँ, बिकॉज ये थैंक यू सर। जज्बा बहुत कम लोगों में होता है। आप उस पर फोकस कर रहे थे जो आपके पास है, आपने उस पर फोकस नहीं किया जो आपके पास नहीं है। ये बहुत बड़ी अच्छी बात है, बिकॉज आपने जिस तरह की बताया आपने कि आपने बाउंस बैक किया। कैसा लगता है आपको इंडिया के लिए खेलना? यस डेफिनेटली, मैं अपने आप को प्राउड फील करता हूँ इस चीज़ के लिए। और मुझे ये भी खुशी है कि जिस चीज़ का टारगेट रखा था मैंने, वहां तक पहुंचने में मैं सफल रहा हूँ। और वैसे तो आगे बहुत कुछ है करने के लिए लेकिन मेरा सपना था कि मैं भी इंडियन कलर पहनूं। वाह, आज आज वो मेरे पास है। तो मैं इस चीज़ के लिए मैं जो जितने भी मेरे सपोर्टर है, जैसे कि मैंने बोला पैरा फिजिकल रिहैबिलिटेशन सेंटर, वहाँ के हर एक मुझे एक सफाई वाले से लेके हमारे डायरेक्टर हैं, वो सब मेरे लिए गुरु हैं। और जो कोचेस जो मुझे सिखाया गया, जो शुरू में पुणे के जो अनिकेत सिंह मेहरा सर है, उन्होंने मुझे चलना सिखाया। और आगे आके नेशनल में आके मुझे गौरव खन्ना सर जो टीम इंडिया के और मेरे कोच है, उनका आभारी हूँ। और उनके बदौलत मैं यहाँ तक हूँ आज। बहुत बढ़िया मिस्टर प्रेम। आप एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है आजकल के यूथ के लिए, बिकॉज और यूथ नहीं, और कई लोग जो अभी इस कोविड टाइम में, कई लोग जैसे अभी लॉट ऑफ पीपल हैव लॉस्ट देयर जॉब्स, लॉट ऑफ पीपल हैव लॉस्ट नियर एंड डियर वंस, राइट? एंड ऐसे में बहुत सिनेरियो ऐसा बन गया है लाइफ में कि कुछ लोग हताश हो चुके हैं, कुछ लोग जूझ रहे हैं अपने जीवन में, और कई लोग जी नो डिफिकल्ट टाइम से गुजर रहे हैं। तो जी आप डेफिनेटली, जैसे आप जैसे लोग जिसने अपने स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुआ, आपको यू गॉट थ्रू अ टफ टाइम, ओके, हैज जी गॉन थ्रू अ वेरी टफ टाइम। तो जी। आप मुझे ये बताइए कि आप ऐसे, व्हाट हैज ऑलवेज इंस्पायर्ड यू? आपकी सफलता का सबसे मुख्य कारण क्या है? आपको लगता है कि ये सबसे मुख्य कारण मेरा ये है, वो क्या चीज है? जी वही मैं बोला ना, कोई भी चीज आप अच्छे से तुलना करेंगे तो आप कर नहीं पाएंगे, मुझे जहाँ तक लगता है। मैं हमेशा जब आपने आगे नहीं बढ़ पाया तो मैं अपने से कमजोर वाले को देखता हूँ और ये सोचता हूँ कि मैं उससे बेटर हूँ, और हाँ मैं इस चीज को कर सकता हूँ। और मेरे जैसे कि मैंने बोला हमारे सेंटर में मेरे लिए गुरु है, तो वैसे ही वहाँ एक सीनियर प्लेयर है जो ओलंपिक प्लेयर, गुरुंग सर, जो NBA गुरुंग सर है, जो एथलेटिक्स और एंड टेबल टेनिस प्लेयर। मैं उनका एक वर्ड बोलना चाहूँगा सभी को। मुझे जहाँ तक लगता है लाइफ में एक इंसान के लाइफ में मैं और ना, ये दो वर्ड ना रहे तो कभी सफलता पाने के लिए कोई नहीं रोक सकता। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सुब्रत। मैं और ना, राइट? यस सुपर। जी नाउ आप मुझे ये बताइए कि जैसे आपने अभी बताया कि ना आपके लाइफ में कोचेस का बहुत बड़ा हाथ रहा है। आपने जैसे जी अपने जर्नी में जब आप सेंटर में आए, और उस जी सेंटर में आपने बहुत लोगों को देखा, आपके कोचेस थे मिस्टर गौरव, और आपने मिस्टर अनिकेत का नाम लिया। जी। तो ऐसा क्या हुआ उस दौरान में जो आप इतने ज्यादा अपने लाइफ के बारे में इतने दृढ़ हो गए कि मुझे कुछ कर दिखाना है? वो ऐसा 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 क्या था जो हुआ उस समय? जी एक्चुअली मैंने जैसे बोला, जैसे वो पैरासिक सेंटर में गए तो एक दो सीनियर प्लेयर ऐसे थे जो इंडिया के टी शर्ट पहन के चले थे। तो मैं सोचा उनमें और मेरे में क्या कमी है जी। तो मैं बोला मैं भी तो कुछ कर सकता हूँ, अभी मेरा भी तो एज है।
वाह। तो मैंने फिर उनसे धीरे धीरे उनसे नजीक जाना शुरू किया। बास्केटबॉल में एडी परेरा सर है, और एथलेटिक्स में गुरुंग सर है। वो लोग व्हीलचेयर में कई नाम कमा चुके थे। तो मैं बोला, मैं ऐसा फर्स्ट इंसान नहीं हूँ जो मुझे रास्ता ही मालूम नहीं है, मैं तो पूछ सकता हूँ। अभी तो मैं तो पूछ सकता हूँ इनसे। मैं पूछ के जा सकता हूँ। मेरे से सीनियर वाले को तकलीफ हुआ होगा, लेकिन मेरे को तो इजी है, मैं तो इनसे पूछ के जा सकता हूँ। तो मेरे लिए तो इजी है। तो मैंने वो वे ढूंढा, और मैंने सोचा कि मैं भी, हाँ भाई, जो मैं ज्यादा नहीं तो इनके पीछे पीछे तो चल सकता हूँ। मैं बोला इनसे आगे नहीं निकल सकता, मैं बोला इनके पीछे पीछे तो चल सकता हूँ। कम से कम मैं इंडिया कलर तो पहन सकता हूँ। मेडल ना सही, मैंने मेडल का नहीं सोचा। मेडल मैं बोला मेडल अगर मैंने रंग लाई तो मैं ले सकता हूँ, लेकिन मेरे को इंडिया कलर पहनना है। तो मैं सबसे पहले इंडिया कलर का सोचा, तो उसके बाद यहाँ पे पहुंच पाया। मुझे आपके अंदर वो आर्मी का जज्बा, जैसे ऐसे मतलब आप आर्मी से हैं, तो वो चीज एक आपने उस चीज को आगे फॉलो किया, आपने आप हताश नहीं हुए। जी जी जी। मेरे वो मुझे बहुत, इट इज वेरी इंस्पायरिंग मिस्टर प्रेम, की मैं सच में आई वर्क विद सो मेनी पीपल जो अपने लाइफ में रिलेशनशिप में परेशान है, जो लोग परेशान है अपने लाइफ में, करियर को लेके परेशान है, जो अपने लाइफ में परेशान है कि नो डर लेके जी रहे हैं, बहुत सारा फियर लेके जी रहे हैं, और आगे कुछ कर नहीं पा रहे हैं बिकॉज वो फियर उन्हें अंदर खा रहा है। और ऐसे लोग के साथ मैं काम करता हूँ और उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म करता हूँ। आपने जो बताया कि आपको चोट लगी, आपको रेटली आपने स्पाइन में इंजरी हुआ थे, और आप आज इस जगह पहुंचे हुए हैं। मुझे आप ये बताइए कि ऑडियंस के लिए मैं एक आपकी तरफ से मैं ये सुनना चाहता हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऐसी क्या चीज है जो किसी को भी चाहिए होती है कि अपने गोल्स अचीव करने के लिए। व्हाट डू यू थिंक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू रिक्वायर टू अचीव योर गोल्स, एंड वो क्या चीज है? यस, थिंक पॉजिटिव एंड प्रैक्टिस हार्ड बोलते हैं ना, वही मुझे जहाँ तक लगता है। और मेरा कोच गौरव खन्ना सर बोलते हैं कि प्रॉब्लम मत बताइए, उसका सॉल्यूशन ढूंढिए। तो मुझे जहाँ तक लगता है, जिस दिन आप प्रॉब्लम को सुनाने के बदले उसका सॉल्यूशन, उसका हल ढूंढेंगे, तो उसी दिन आप एक स्टेप आगे बढ़ चुके होंगे। बहुत बढ़िया मिस्टर प्रेम, दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट लेसन एक्चुअली। प्रॉब्लम पे फोकस मत करिए, सॉल्यूशन फोकस करिए, राइट? जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और मैं आज की डेट में अभी आप देखिए, कई लोग जैसे टफ टाइम में गुजर रहे हैं इस कोविड टाइम में, फिजिकल हेल्थ, कई लोग एंजाइटी और फियर में जी रहे हैं। आगे क्या होगा, हम आगे कैसे जिएंगे, आगे कोविड रहेगा नहीं रहेगा, हमारी जॉब रहेगी नहीं रहेगी, मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, मतलब अपने लाइफ में आगे ढूंढते जा रहे हैं कि हम करेंगे क्या आगे, पता नहीं, बहुत एंजाइटी बहुत है लोगों में। आपका मैसेज क्या है उन सब के लिए? मैं यही कहूंगा कि सेम वही बात फिर दोहराना चाहूंगा, जो कि प्रॉब्लम को छोड़ के हल को ढूंढिए उसका। तो ऐसा नहीं है कि आज ही सिर्फ कोरोना ही आया है प्रॉब्लम, इससे पहले दूसरा प्रॉब्लम भी आया है, उससे भी हम निकल चुके हैं। सिर्फ फर्क इतना है कि सोच पर है, हम कैसे निकलते हैं वो हमारे सोच पर बहुत डिपेंड करता है। मुझे लगता है पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, और जो भी प्रॉब्लम आता है मुझे लगता है उससे हम इजीली निकल पाएंगे। अगर जिस दिन नेगेटिव थिंकिंग रखेंगे जैसे, और सोचोगे कि ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, तो उस दिन हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, उल्टा डाउन हो जाएंगे, जो है उससे भी डाउन हो जाएंगे, मुझे जहाँ तक लगता है। और मुझे इतने साल का तजुर्बा के हिसाब से मैं कहता हूँ, कोशिश करने वाले का अभी तक सुना नहीं कि हार हुआ है। बहुत बढ़िया। दिस इज वन ऑफ द गुड मैसेजेस एक्चुअली। ऑलवेज हम बढ़ते हैं, कोशिश करने वाले हार नहीं होते, लेकिन आपको एग्जांपल देख के, आपका एग्जांपल देख के मैं
इस वर्ड पे मेरा इतना विश्वास बढ़ गया है, इस सेंटेंस पे, कोशिश करने वालों की भी हार नहीं होती। दैट इज ट्रूली इंस्पायरिंग। और आई एम श्योर मेरे दर्शक जो इस समय देख रहे हैं, हमारे दर्शक जो इस समय इसको देख रहे हैं, आज एक नए जोश और एक नए उल्लास के साथ आगे बढ़ेंगे। बिकॉज अगर हम कोशिश करते रहते हैं कोई अचीव करने के लिए तो हमारी कभी हार नहीं होती है। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। दिस इज वेरी वेरी इंस्पायरिंग एंड आई रियली विश यू ऑल द वेरी बेस्ट मिस्टर प्रेम कि आपने हमारे लिए समय निकाला। मैं आपसे अभी मैं इस चीज को रियली सोच रहा हूँ कि मैं आपसे कब मिलूंगा, बिकॉज आई रियली वांट टू मीट यू इन पर्सन एंड डेफिनेटली इट्स अमेजिंग टू बी पार्ट ऑफ such people who have really made a massive difference to their life। and आपकी फैमिली भी, see, जब आप अपने आप को स्ट्रांग रखते हो तो आपकी फैमिली भी आपके साथ स्ट्रांग रहती है। अगर आप अपने आप को वीक दिखाओगे तो आपकी फैमिली वीक महसूस करेगी, राइट? तो जो आपने जो किया है वो आई थिंक बहुत कम लोग कर पाते हैं, which is hats off to you for what you have done। मेरे पास सिर्फ मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं बहुत लोग हैं मैं जिनके साथ रोज बात करता हूँ, कई लोग हैं जिनसे मिलता हूँ। मैं कुछ कहना चाहता हूँ उनसे कि मैंने देखा है कि बहुत लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि मेरी जॉब अच्छी नहीं है क्योंकि मेरा कॉलेज अच्छा नहीं था। ओके, मैं वेट नहीं लूज कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरा पास टाइम नहीं है। मैं एक बिजनेसमैन होता अगर मेरी फाइनेंशियल कंडीशन मेरे घर में अच्छी होती, वगैरह वगैरह बहुत चीजें कहते हैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, अपने ऑडियंस से भी कहना चाहता हूँ, अगर आपको अपने जीवन में कुछ करना है तो आपको सिर्फ रास्ते नजर आएंगे। अगर आपको कुछ नहीं करना है तो सिर्फ बहाने नजर आएंगे। ये मैंने देखा है कई लोगों को करते हुए, और लोग बहाने मारते हैं कि मुझे मैं आज ये हो गया, बिकॉज अब ये हो गया। अगर जिसको सही में कुछ करना है तो उसको सिर्फ रास्ते नजर आएंगे। जो मैं आप एक जीता जाता एग्जाम्पल है उसका। अगर आप उस समय हार मान लेते और बैठ जाते कि अब कुछ हो नहीं पाएगा, आई एम गोइंग टू गेट माय पेंशन और व्हाटएवर आपको मिलेगा, उससे काम चलाएंगे, तो आज आप शायद इंडिया के लिए ना खेल पाते। वो जज्बा आपके अंदर था कुछ कर गुजरने का और कुछ करने का, और आपने बाउंस बैक किया अपने लाइफ में। सबसे बड़ी बात यह है, बिकॉज एक ट्रू विनर वही है जो एक्चुअली सिचुएशन से लड़के बाउंस बैक करे और दोबारा सिर उठा के चलना सीखे। दैट इज व्हाट अ ट्रू विनर इज, and which is what a real example to you। I really want to salute you for this and really आपके जज्बे को सलाम करता हूँ मैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। and my audience who is watching this definitely can really get lot of inspiration from you। हमने अपनी लाइफ में देखा है, in our lives there are so many people, okay, who lose so many opportunities and carry so many regrets, okay। it is because when opportunity was there they have not grabbed it and they have given excuse, we'll do it later or don't have time। now एक चीज बहुत clear है, if you give excuses to yourself, do you think that your life will become what you have dreamt of? I'm sure the answer will be no। so take charge of yourself, grab any opportunity to make a difference in your life, whether in your work, relationship or any other aspect of life, okay। so that's my message to all of you guys, and thank you so much Mr. Prem for being on the show। my really thank you so much gratitude to you for coming on a very short notice। I really thank all the viewers for watching this, and only thing from my side is that stay indoors, stay safe, stay strong। no time is same, it's going to change and you're going to have an amazing life ahead, trust me। and please don't forget to subscribe to my channel and follow my social media pages, and stay tuned to watch more bounce back stories with Shailesh। thank you so much, all the best। thank you Mr. Prem, thank you so much for your time। awesome, thank you so much। thank you so much। my pleasure।